Assalamu alaikum. I hope you're all doing great. And welcome to a brand new episode of Lens and Light with Gulzana Mantra. नाज़रीन, हम हमेशा अपने इस शो के बीच में आपको किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड एजुकेट करते रहते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही मुख्तलिफ नौइयत का है, with a very different perspective, with something very brand new in Pakistan. Yes, today my guest is straight from UAE, Adil Anjum. Assalamu alaikum Adil. वालेकुम अस्सलाम गुलशन। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। Thank you for taking out time. जब मैं अदील से मिली और अदील के साथ एक इवेंट के ऊपर हम इकट्ठा हुए, तो इन्होंने एक बहुत डिफरेंट जो चीज़ थी उसको लॉन्च किया पाकिस्तान में, जिसके बारे में हम अभी 1 मिनट के बाद बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि अदील अपने आप को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि अदील आप कौन हैं, कहाँ से चले, where did you start your journey from, Sure. and where do you stand today? Right, okay. Thank you. First of all, thank you very much for having me. तो मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट किया about 20 years ago. I started my career within the corporate world. जैसे हर कोई जब करियर स्टार्ट करता है, full of motivation, full of drive to climb up the ladder as soon as possible. लेकिन शुरू से right from the beginning, मेरा vision जो था very clear था. I wanted to work in different sectors, different industries. तो मैंने start किया retail industry में. Retail industry is a very diverse industry, very tough industry. Retail is not for everyone. तो retail में किया, I learned what I needed to learn. Then I moved to fitness industry because I used to be a fitness fanatic. I used to box. I used to train a lot. I can see that. Thank you. तो फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ साल काम किया, फिर उसके बाद होटल इंडस्ट्री में गया, फूड इंडस्ट्री, F&B. That was in the UK, so that's where I started my career. लेकिन obviously destiny के कुछ और plans होते हैं. My destiny took me to the Middle East. Initially I thought I'll go there for a couple of years और वापस आ जाऊँगा. But those 2 years then became 14 years. तो last 14 years से मैं Middle East में हूँ. I'm in the UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, the whole region. Or last 14 years में I have built various different businesses. उनको different brands को from Europe, from USA. We brought them into the Middle Eastern market within oil and gas, fashion retail, sports retail, food retail, और new startups को build करके we took them to multi-billion-dollar business, and that's where my strength lies. Wow, what a journey. Thank you. Very successful ventures, straight 2 decades, right? Yep. So, if we look at your journey, how do you see this journey when we talk about people, purpose, Yep. and perseverance? Yep. Especially aligned with, because the event that we attended, you were coming up with something very different, and Yep. that is tokenized real estate That's concept, right. That's right. So, aligned with tokenization and AI in real estate. Yeah, sure. So I'll take you back to the journey of why we started this project. So, जब मैं corporate world में था, I worked my way up to the CEO of a large blue chip organization. लेकिन मेरा और मेरे partners का हमेशा से एक vision था कि we always wanted to build something for the people. कि हम कुछ ऐसी opportunities create करें जिससे कि लोग फ़ायदा उठा सकें. मैं और मेरे पार्टनर ताहिर बशीर, also अबू बकर, हमने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू की कि how can we add value to the society. तो हमने जब उसकी रिसर्च की तो हमें फील हुआ कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है जो कि अनयूज्ड रहता है. लोगों के पास सेविंग्स होती हैं in small amount. Everyone want to invest in some assets. लेकिन unfortunately conventional method में सिर्फ rich लोग invest कर पाते हैं. If you have the money, then you can invest and you can multiply your money. Elite class, that's always been the formula. Because our vision is that we want to do something for the masses. तो उसको लेके फिर हमने
एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है कि जिससे इवन स्मॉल टू मीडियम साइज इन्वेस्टर्स, अगर किसी के पास थोड़ी सी अमाउंट सेविंग में पड़ी है, बैंक में थोड़ी सी गोल्ड ज्वेलरी पड़ी हुई है, बट दे हैव द एपेटाइट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, राइट। तो वो उसके साथ फ्रैक्शनल ओनरशिप में, टोकनाइजेशन में इन्वेस्ट कर सकें। अभी अभी आपने टोकनाइजेशन का एक वर्ड जी। यूज़ किया, ठीक है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए और पाकिस्तान के जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मेरा ख्याल है ये टर्म खुद मेरे अपने लिए बिल्कुल एक नई टर्म है। जी I would want you to Sure. elaborate, जी define this term, जी जी and elaborate on it, keeping in mind a very first-time investor. Yeah, sure, sure. Actually, मैंने last week podcast की थी UAE में with one of the very large real estate companies. तो even उनको भी टोकनाइजेशन का नहीं पता था. They've been in this sector for 40 plus years. Even उनको भी नहीं पता था. It's a new concept, but very exciting concept. तो टोकनाइजेशन सिंपल टर्म्स में है कि आप एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिफरेंट स्लाइसेस में ब्रेक कर देते हैं. Different, you can call them slices, you can call them digital shares, you can call them digital tokens, digital units. आपको अगर मैं एग्जांपल दूं मैं ये चाह रही थी कि अगर आप एग्जांपल देके समझाओ। जी श्योर. एक कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से अगर एक कमर्शियल टावर है, उस कमर्शियल टावर में एक स्टोर अवेलेबल है कि जिसको कोई उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है. अब उसको खरीदने के लिए हर किसी के पास इनफ सेविंग्स नहीं है. It's a huge amount that someone needs to invest, crore, 2 crore, depending on where that unit is. It could go up to even, I believe, more than 5-6 crores. अब हर किसी के पास सेविंग नहीं है. Real estate has always been considered as a very safe investment asset. तो टोकनाइजेशन क्या करता है कि उसी स्टोर को, उसी यूनिट को ब्रेक कर देता है डिफरेंट स्मॉलर पोर्शंस में, डिफरेंट स्लाइसेस में, rather than having one person investing into it. 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके स्मॉल स्लाइसेस के ओनर बन सकते हैं. एंड दैट इज कॉल्ड अ टोकन. Do you mean shareholders? एब्सोल्युटली. सो अगेन, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं स्टॉक मार्केट की, द कांसेप्ट इज वेरी सिमिलर. स्टॉक मार्केट में होता है That's क्या why है? I used the term shareholders. एब्सोल्युटली. स्टॉक मार्केट में होता है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, फिर आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं. लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है, नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल विद द नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट. हर किसी को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ट्रेंड्स का पता नहीं है, कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, कौन सा बुरा कर रही हैं. रियल एस्टेट हर किसी को पता है कि इज डूइंग वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल. यूजुअली रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होती है. तो उस कंपनी के शेयर जब आप लेते हैं तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है. जब आप एक रियल एस्टेट की यूनिटाइजेशन करते हैं, टोकनाइजेशन, एक तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन से फायदा होता है, दूसरा जो रेंटल इनकम आपको मिलती है आपकी फ्रैक्शनल ओनरशिप पे, वो इट्स लाइक योर डिविडेंड. सो इट्स द रीअकरिंग पैसिव इनकम. So you get the benefit from both sides, capital appreciation, rental income, और तीसरी जो सबसे बड़ी इसकी यूटिलिटी है, आपको वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है. अगर आपके पास इनफ सेविंग्स हैं कि आप एक स्टोर ले सकें, तो टोकनाइजेशन, यूनिटाइजेशन क्या करता है कि एक स्टोर लेने के बजाय आप 10-15 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टावर्स के बीच में स्मॉल यूनिट्स ले सकते हैं. किसी को अगर आप लिक्विडेट करना चाहें, आप यू कैन सेल, यू कैन कीप सम, यू कैन सेल सम. बिल्कुल ठीक है. इसके साथ मेरे माइंड में बात ये आ रही है अभी कि इसको लेके बहुत से चैलेंजेस, जी बहुत से रिस्क्स, जी क्योंकि एआई तो आई एम एन एआई ट्रेनर, ठीक है. जब मैं ट्रेनिंग्स करने के लिए जाती हूँ तो आई नो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट आई हैव टू फेस, राइट. लोग एआई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. ये बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान जैसे रीजन में राइट आप लॉन्च कर रहे हैं इस चीज़ को. तो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड रिस्क्स एट द सेम टाइम? क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी जो ट्रस्ट लेवल है राइट इन्वेस्टर का, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो कमर्शियल, दोनों ही बहुत कम है, ठीक है. सही. तो क्या आप समझते हो कि एआई और टोकनाइजेशन टुगेदर
they can build up the trust level of the Right. client Right. or the investor. जी. और if you believe yes, Mhm. how come? उन challenges को आप कैसे meet करोगे पाकिस्तान की market के अंदर? Sure. ठीक है? और किस तरह से वो trust level build up करोगे against the client? Sure. तो जिस वक्त हम इसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे थे हमारे प्लेटफॉर्म की विच इज़ कॉल्ड PropStake, PropStake AI. right? propstake.ai, तो एक बहुत बड़ा हमारा R&D का एक कंपोनेंट यही था कि हमारा जो विजन है कि हम उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें who might not be very well educated. वो हो सकता है कि शायद वो उस एज ब्रैकेट से हों कि जिनको इतनी समझ भी नहीं है. तो हाउ कैन वी मेक इट वेरी सिंप्लीफाइड, वेरी इजी. तो हमने क्या किया, उसमें डिफरेंट लेयर्स क्रिएट किए हैं. एक लेयर है एआई की, जैसे आपने कहा. अगर किसी को समझ नहीं है तो हमारा चैट जीपीटी की तरह का एआई हमारा एजेंट है. आप उससे क्वेश्चन अगर पूछें, द एजेंट विल डू एन इंटरव्यू विद यू, विल आस्क यू क्वेश्चंस कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, कितना आप रिटर्न और इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, आप कितनी पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं. तो वो पूरा आपसे इंटरव्यू करके उसके बाद आपको सजेस्ट करेगा इन अ वेरी सिंपल वे. वो आपके साथ उसी तरह ही कम्युनिकेट करेगा जैसे आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है. फिर उसके बाद वो आपको रिकमेंड करेगा कि आपके प्लानिंग के हिसाब से ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा सूट करता है. फिर आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे. इट्स लाइक अ होल वेरी सिंपल इजी शॉपिंग एक्सपीरियंस. आप क्लिक करेंगे, आप ब्राउज थ्रू करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे. वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर कंफर्टेबल विद इन्वेस्टिंग इनटू दैट प्रॉपर्टी, तो आप उसको क्लिक करेंगे एज इफ यू बाइंग समथिंग. लेकिन हमने क्या किया, उसके नीचे एक और लेयर क्रिएट की है विच इज़ द लेयर ऑफ ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन is the game changer. Yes. It's very secure, it's compliant, it's 100% risk free. Or in simple words, blockchain is like your ledger, is like your accounts. Yes, exactly. एक conventional business model में कोई भी accountant जाके human intervention करके can manipulate with जैसे पाकिस्तान में पटवारी जो हैं वो कुछ भी. पटवार सिस्टम के ऊपर तो Correct. बहुत ज़्यादा That's right. घपला. That's right. मतलब रिसेंटली मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज जी. के साथ जो पटवार सिस्टम ने किया जी. वो काफ़ी बड़ा एक थ्रोबैक रहा पाकिस्तान की Right. डिस्ट्रीब्यूशन. Right. अच्छा, अभी आपने यूएई की बात की. जी. You talked about UAE. You talked about the blockchain Right. system, right? Yeah. Now, when we look at the UAE and countries like Singapore, Right. they're already experimenting, Correct. right, with this blockchain and AI-driven real estate model, That's right. right? From your perspective, Yeah. with your expertise in this field, That's right. what lessons do you think Pakistan need to learn from this international market? Yeah, for sure. So we are an international platform. So we are not only in Pakistan. We are proud to launch in Pakistan first. लेकिन इसके साथ parallel, we are in the UAE market. We are in the US. और हमारे plans are truly global plans. हम इसको African market में लेके जाने का हमारा plan है. Early next year, we're taking it to the Turkish market as well. And potentially in 2027 in Southeast Asia, जैसे आपने कहा सिंगापुर, हांगकांग. तो पाकिस्तान के लिए जो पोटेंशियल है इट्स एब्सोल्युटली ह्यूज, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट अभी भी बहुत रो मार्केट है. इट्स अनटेस्टेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड मार्केट. यहाँ पे मॉडर्न रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है. और इन्वेस्टर्स जो कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स, नॉट रिटेल, स्मॉल इन्वेस्टर्स, दे हैव नेवर इन्वेस्टेड इनटू एनीथिंग लाइक दिस. तो हम जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसके साथ हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. हमारे प्लेटफॉर्म पे एक पूरा सेक्शन है जिसमें लाइक अ डमीज गाइड, वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस होंगी जिससे हम लोगों को एजुकेट करेंगे, गाइड करेंगे. और हमारा एआई एजेंट जो है उनकी सपोर्ट करेगा. एंड वी विल हैव अ कॉल सेंटर एज वेल, Okay. which in phase 1 will be a humanized call center. Like eventually we will move towards obviously completely AI call centers as well. And the whole idea is कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जितनी अनयूज्ड मनी जो है इकोनॉमी में है उसको इकोनॉमिक साइकिल में लेके आएं, जिससे स्मॉल इन्वेस्टर्स क्रिएट होंगे, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होंगे, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी. एंड इवेंचुअली देयर विल बी मोर मनी
coming to the Pakistani market. और एक और point जो कि बड़ा important है, there is a very big overseas Pakistani community. I was about to ask, my next Okay. question is related to that. Okay, yeah, That tokenized real estate, right, Yeah. is often pitched Right. as a great option for the overseas Pakistan. Mhm. And how do you see this impacting Pakistan's economy? yep, क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो बहुत बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान को भेजते हैं हर साल, correct. ठीक है जी. और पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन बहरहाल उनके ऊपर डिपेंड करता True, true, है. टोकनाइज्ड रियल एस्टेट true. किस तरह से पाकिस्तान की Sure. इकोनॉमी को ओवरसीज पाकिस्तानीज ये सारा जो ट्रायंगल है जी. ये किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते जी बिल्कुल. Again हमारा platform जो है it's a global platform. और part of our business strategy was to bring in more investment into Pakistan. Pakistani जो overseas community है, they are in the Middle East, they are in Europe, USA, everywhere. हैं? Name it. You name it. We are everywhere. We are So तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, those will also be accessible to the investors living overseas. तो जो वो इन्वेस्ट करना चाहते थे पाकिस्तान में previously, लेकिन they were scared because of the patwar system, because of whatever reasons. मेरे अपने 29 friends they're abroad. जी. And every time they come and visit Pakistan, they say, no, my own sister, Yeah, she doesn't want to invest. Correct. So, मेरा ख्याल है कि ये वीडियो मैं उनको भी send करूँगी. Absolutely. You know. Through your educating first myself, Sure. and then of course educating them. Definitely. All right. So it will work two ways. So they will be able to invest into Pakistan market, more पैसा पाकिस्तान में आएगा, और जो पाकिस्तानी investors हैं who have the appetite to invest into international markets, they can do that as well. So eventually Pakistan will benefit. Right. उनकी income extra बढ़ेगी, passive income, they will bring it back to Pakistan, and obviously economy will benefit. आपको लगता है कि जब global landscape पे हम देखते हैं जी. कि पाकिस्तान real estate में इस idea के साथ For sure. अपनी एक बहुत strong जगह बनाएगा? For sure, 100%. Where do you see Pakistan in the next 10 years? I'm quite hopeful actually. With this. Absolutely. Actually, we are very hopeful. अगर आप पाकिस्तान को देखें, more than I think nearly 65% of Pakistani population is below the age of 30. ये वो लोग हैं जो कि business के decision makers हैं, not only now but for the next 30 years. और ये वो generation है, they are hungry to find the investment opportunities. तो जब हम उनको PropStake के through जब ये opportunities provide करेंगे, they will be able to become entrepreneurs. They will be able to have more money. They will create more job opportunities. तो मेरा ख्याल है जो next 10 years की journey है पाकिस्तान की is very exciting. The best wishes for your future venture. Thank you very much. And thank you to PropStake AI, PropStake.ai, जिनकी वजह से अभी जैसे लोग आज पाकिस्तान में आए हैं, आज सिर्फ एक इवेंट अटेंड करने के लिए नहीं आए, बल्कि बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हैं जो अभी ने कंडक्ट की, जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट हिस्ट्री के बीच में एक बहुत रेवोल्यूशनरी step जो है बनाना चाह रहे हैं. I hope you like the episode, and definitely if you have small investments, if you're a commercial investor, if you want to invest on a larger scale, definitely PropStake.ai is the platform for you. And Tahir Bashir Sahab and Adil Anjum इन्होंने इनिशिएटिव लिया है. मुझे लगता है कि आज के एपिसोड से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. आप बहुत ख्याल रखिए. Until next time, this is Gulsan Amisha signing off from this episode of Lens and Light with Gulsan.